وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا. کہا سیلاب نے ملک میں تباہی مچا دی. موسمیاتی تبدیلیوں سے راتوں رات نہیں نمٹا جا سکتا مگر روڈ میپ بنانا ہوگا. نقصانات کے ازالے کے لیے وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. جلال پور پیروالا میں متاثرین سے بھری کشتی الٹ گئی. خان بیرا روڈ پر ڈوبنے والی کشتی کے تمام افراد کو بچا لیا گیا. ریسکیو حکام کا کہنا ہے کشتی میں 20 افراد سوار تھے. تمام کو باحفاظت نکال لیا گیا. کراچی کی لیاری ندی کا پانی گلشن معمار کے سکھیا گوٹ میں داخل. گلیوں اور گھروں میں کئی فٹ پانی جمع. لوگ چھتوں پر بیٹھے حکومتی امداد کے منتظر ہیں. اور اسرائیل کے یمن پر بھی فضائی حملے. دارالحکومت صنعا اور الجوف کو بھی نشانہ بنایا گیا. یمنی وزارت صحت نے بتایا صہیونی جارحیت سے 9 افراد جاں بحق ہو گئے، 18 زخمی ہیں. حملوں میں طبی مرکز اور سرکاری کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا. ملبے میں دبے افراد کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں. نواز شریف کی بیٹی کا وعدہ ہے ہر ایک کا نقصان پورا ہوگا. مریم نواز کا جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین سے وعدہ. ریلیف کیمپ میں متاثرین سے ملاقات کی، مسائل دریافت کیے. مریم نواز نے سیلاب متاثرین کو کھانا کھلایا، خود بھی ساتھ کھایا. امدادی چیک بھی تقسیم کیے. کہا سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا. متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. متاثرین کو تیار کھانا اور طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. گھروں اور ہلاک مویشیوں کا ازالہ کیا جائے گا. جلال پور پیروالا کے لیے بند بنانے کا حکم دے دیا. مریم نواز نے ملتان میں سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا. ریلیف اور ریسکیو سرگرمیوں پر بریفنگ دی. پنجاب میں سیلاب متاثرین سے پرائیویٹ کشتی مافیا کی لوٹ مار. جلال پور پیروالا میں مبینہ طور پر فی آدمی 10,000 فی فیملی 1 لاکھ روپے وصول کیے جانے کا انکشاف. لیاقت پور میں متاثرین کی مجبوری کو کشتی مافیا نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا. سیلاب متاثرین نے شکوہ کیا محفوظ مقام پر منتقلی کے لیے 1 لاکھ روپے تک وصول کیے جا رہے ہیں. ایک شخص کے بدلے 1 جانور لے کر کشتی میں سوار کرایا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس. متاثرین کو لوٹنے والے کشتی مالکان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم. نجی کشتیاں سرکاری نگرانی میں چلانے کی ہدایت. کہا نجی کشتی مالکان کو ادائیگی حکومت کرے گی. بارشوں کے بعد کراچی کی لیاری اور ملی ندی لبا بھر گئی. ملی ندی میں پانی کا تیز بہاؤ. شاہراہ بھٹو کا ایک حصہ ساتھ لے گیا. وارنگی کازوے بھی پانی میں ڈوب گئی. ٹینکر ریلے میں پھنسا رہا. جام صادق پل کے قریب تعمیر کے لیے موجود کچھ سامان پانی میں بہہ گیا. ہائی ٹینشن ٹاور کے گرد سے مٹی ہٹ گئی. پول گرنے کا خدشہ. سمندر کی طرف جانے والی لیاری ندی بھی پوری بھر گئی. اسکیم 33 کے سکھیا گوٹ میں ابھی تک پانی جمع. لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ بستی گوہر آباد بھی پانی کی زد میں آئی. گولی مار کے کشمیر محلے کو بھی لیاری ندی کے پانی نے ڈبو دیا. ٹھڈو ڈیم اوور فلو ہونے سے کئی سال بعد پھر سادی ٹاؤن زیر آب آیا. گڈاب کی کونکن ندی میں 7 افراد بہ گئے. 4 کی لاشیں نکال لی گئیں. ڈوبنے والوں میں ماں اور بیٹا بھی شامل. بارش نے شہر کے دیگر کئی علاقوں کو بھی متاثر کیا لیکن مرکزی سڑکوں سے پانی نکال دیا گیا. شاہراہیں پانی سے کلیئر کر کے ٹریفک کی ربانی بحال کی گئی. پاک فوج کے جوان بھی ضلعی انتظامیہ کے ساتھ کاموں میں مصروف رہے. میئر نے لیاری اور ملی ندی کو نیا چیلنج قرار دیا. کہا ندیوں کے اطراف غیر قانونی آبادیوں سے متعلق حکمت عملی بنائی جائے گی. مؤثر انتظامات سے رواں برس شہریوں کو دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا. شہر ڈوبا نہیں مگر بارش پر سیاست کرنے والوں کی امیدیں ڈوب گئیں. تمام سیاسی جماعتوں سے کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے چارٹر آف کراچی بنانے کی آفر بھی کر دی. میئر کراچی کا گارڈن، ایم اے جناح روڈ اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے مختلف علاقوں کا دورہ. کراچی میں بارش کی پوری تیاری کر رکھی تھی. کیرتھر پہاڑیوں سے آنے والے پانی سے ٹھڈو ڈیم اوور فلو ہوا. لیاری ندی میں کافی پانی آیا. وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی کے مختلف علاقوں کے دورے پر گفتگو. قیوم آباد، چورنگی، ملید 15 پر بارش کے پانی کی نکاسی کا جائزہ لیا. وارنگی کازوے کا بھی معائنہ کیا. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی میں صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے.
डैम भरने और शदीद बारिशों की वजह से लियारी और मली नदी में तूफानी आई। सिंध हुकूमत ने शाहराह भुट्टो डिजाइन करने वाला इंजीनियर कल तलब कर लिया। बह जाने वाला हिस्सा जेर तामीर था, सिर्फ 30% काम हुआ था। तीसरे फेज पर वाटर रिटेनिंग वॉल भी तामीर नहीं हुई थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना है रिटेनिंग वॉल के बगैर पानी नहीं रुकता। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं शाहराह भुट्टो का बह जाना पीपल्स पार्टी की करप्शन की बदतरीन मिसाल है। तजावुजात की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। कराची में सुरजानी पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन, हामला को मोबाइल में अस्पताल पहुंचाया। खातून की तबीयत खराब होने पर शौहर रिक्शा टैक्सी तलाश करता रहा, कोई सवारी न मिली तो खातून की फैमिली ने 15 पर कॉल करके मदद तलब की। SHO सुरजानी ने फौरी 2 पुलिस मोबाइलें घर में भेज दी। खातून अस्पताल में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना का दौरा, मोरिया लूप बंद का मुआयना किया, सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो की साबिक वजीर आला मुमताज भुट्टो के साहिबजादे अमीर बख्श भुट्टो से मुलाकात, वालिद मुमताज भुट्टो के इंतकाल पर ताज़ियत की। वजारत इत्तलात व नशरियात ने कौमी पैगाम अमन कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी कौमी कमेटी बराए तश्कील बयानिया की ज़ेली कमेटी होगी। कमेटी इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी पर मुत्तफ़िक़ा बयानिया तश्कील देगी। फ़िरक़ावारियत, नफ़रत अंगेज़ तक़ारीर के खिलाफ भी कौमी सतह पर मुत्तफ़िक़ा बयानिया मुरतब किया जाएगा। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं उलमा की रहनुमाई का इक़दाम खुशाइंद है। दहशतगर्द मजहब के पीछे छुप कर लोगों को गुमराह करते हैं। कमेटी के अरकान दीन के असल मानी लोगों को समझाएंगे। हुकूमत का RLNG के नए कनेक्शन देने का फैसला, वफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने बताया सुई गैस की दोनों कंपनियां आवाम की दरख्वास्त पर नए कनेक्शन देंगी। RLNG मकामी गैस से महंगी लेकिन LPG से 35% सस्ती होगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा 2021 से घरेलू सार्फिन के गैस कनेक्शन पर पाबंदी आई थी। आज वजीर आजम ने फैसला किया है कि गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। 9 मई के बाद से मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है, कई बार अप्लाई किया मगर पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गन्नापुर कहते हैं अफगानिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन बानी PTI का हुक्म हो तो बगैर पासपोर्ट भी अफगानिस्तान जा सकता हूँ। अफगान हुकूमत से बातचीत सूबे नहीं विफाक का काम है। शराब व असलहा बरामदगी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने गिरफ्तार करके 17 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के इलाकाई इंसदाद दहशतगर्दी फोरम की चेयरमैनशिप संभाल ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बतौर चेयरमैन पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इलाकाई ताउन को फरोग देगा। इलाकाई ताउन बाहमी एतमाद मसावत पर मबनी शंघाई स्पिरिट के उसूलों के मुताबिक होगा। पाकिस्तान साइबर इंसदाद दहशतगर्दी, इत्तलाआती ऑपरेशन की सरगर्मियों और तकरीबात की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी समेत अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। बैनुल अक़वामी और इलाकाई शिराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। बहरीन के वजीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की वजारत दाखिला आमद, मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन मजीद मुस्तहकम करने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था इंसदाद मुनशियात के शोबे में ताउन निहायत अहमियत का हामिल है। बहरीन के वजीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फरोग देना चाहते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के तालीमी इदारों का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने कहा फौज पाकिस्तान कौम का फख्र है। पाक फौज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया और हमेशा करती रहेगी। बतौर तलबा हमें मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा और झूठी मालूमात से बचना होगा।
नेपाल में नौजवान एहतजाज के बाद सफाई मुहिम में भी आगे। काठमांडू में मुतासरा इमारतों और सड़कों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का काम शुरू कर दिया। हुकूमत का तख्ता उलटने वाले तलबा ने बेलचे और झाड़ू उठा लिए, सड़कों पर फैला मलबा हटाया और पार्लियामेंट के अतराफ में सफाई का बेड़ा उठाया। यूथ एक्शन ग्रुप्स ने ऐलान किया है कि सफाई मुहिम दीगर शहरों तक फैलाई जाएगी। अफरा तफरी के बाद फौज ने नेपाल का कंट्रोल संभाल लिया। नेपाली आर्मी चीफ ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। जेनजी के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद नेपाल के सदर, वजीर आजम और वज़रा मुसाफी हो चुके। काठमांडू के मेयर बलंदर शाह वजीर आजम के मजबूत उम्मीदवार। जनरेशन जी बलंदर को मुस्तकबिल का वजीर आजम देखना चाहती है। इसराइल का दोहा पर हमला, कतर ने भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। कतरी वजीर आजम ने हमले को रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए कहा, कतर इस वाक़े को हरगिज नजरअंदाज नहीं करेगा। इसराइल के वहशियाना इक़दाम के खिलाफ पूरे खित्ते से जवाब आना चाहिए। कतरी वजीर आजम ने हमले से पहले इत्तला देने के अमरीकी दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका ने हमले का उस वक्त बताया जब इसराइल बमबारी कर रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को हमले की इत्तला चंद मिनट पहले दी। हमले का मकाम तक नहीं बताया। इसराइल ने 10 तैयारों से हमला किया। इसराइल की ढिठाई। अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब ने कहा, जरूरी नहीं हमेशा अमरीकी मफाद को मद्देनजर रखें। दोहा पर हमला दुरुस्त फैसला था। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, दुश्मन जहां होगा वहां निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कतर पर इसराइली हमले से नाखुश। कहा, जिस तरह हमास के रहनुमा निशाना बने इससे खुश नहीं, लेकिन यरगमालियों को तो वापस लाना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, कतर पर हमला इसराइल का एकतरफा फैसला था। सदर ट्रंप ने अमीर कतर को यकीन दिलाया है इसराइल हमले नहीं दोहराएगा। ट्रंप से गुफ्तगू के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा, अमरीकी सदर ने कतर की खुद मुख्तारी पर हमले की शदीद मजम्मत की। कतर के साथ यकजहती का अयादा किया। हम अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। गजा में इसराइल की बढ़ती जा रही है दहशतगर्द सेहूनी फौज के हमलों में 52 फलस्तीनी शहीद हो गए, सैकड़ों जख्मी हैं। एक बच्चे समेत 5 अफराद भूख से दम तोड़ गए। इसराइल ने गजा शहर पर कब्जे के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया। गजा इमदाद ले जाने वाले काफिले पर इसराइल का दूसरा ड्रोन हमला। ग्लोबल सुमूह फ्लोटिला में शामिल जहाज पर ड्रोन हमला ट्यूनिस से गजा रवानगी के वक्त किया गया। इसराइली हमले के बाद कश्ती में आग भड़क उठी। अमरीकी सदर और काबीना को वाशिंगटन में एहतजाज का सामना। ट्रंप अपनी काबीना के साथ डिनर के लिए पहुंचे तो लोगों ने फलस्तीनियों के लिए एहतजाज शुरू कर दिया। अमरीकी सदर का यूरोपीय यूनियन से भारत और चीन पर 100% टैरिफ आयद करने का मुतालबा। कहा, 100% टैरिफ के जरिए रूस पर यूक्रेन जंग खत्म करने का मुश्तरका दबाव डालें। सब मिलकर महसूलात लगाएं ताकि चीन और भारत रूसी तेल खरीदना बंद करें। रूसी तेल के लिए ज्यादा मुतबादिल मंडियां मौजूद नहीं। यूरोपीय यूनियन भारत और चीन पर महसूलात लगाएगी तो वाशिंगटन भी ऐसे इकदाम करेगा। एशिया कप में यूएई की टीम का मायूस कुन खेल। भारत के खिलाफ अपने कम तरीन टोटल 57 रन पर ढेर हो गए। ओपनर्स अलीशान 22 और कप्तान मोहम्मद वसीम 19 रन की मुजाहमत दिखा सके। 10 रन के फर्क से आखिरी 8 विकेटें गिरी। 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। कुलदीप यादव ने 4 और शिवम दुबे ने 3 शिकार किए। सूर्या ने सलमान से हाथ क्यों मिलाया? भारत में इंतहा पसंदों ने अपने कप्तान को आड़े हाथों ले लिया। सलमान आगा और मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने पर भारतीय मीडिया और इंतहा पसंदों ने अपने कप्तान को विलन बना दिया, देशद्रोही करार दे दिया। कहा, यह गद्दारी देश कभी नहीं भूलेगा। एक हाथ मिलाने पर यह हाल है तो मैच खेलने पर क्या होगा? कुछ लोग तो इतने गुस्से में आ गए कि इंडियन टीम का बायकॉट अफगानिस्तान को सपोर्ट करने का कह दिया। एशिया कप में मैच से पहले कौमी टीम पैडल कोर्ट में उतर गई। खिलाड़ियों ने क्रिकेट के बजाय पैडल खेला। साइम अयूब, शाहीन आफरीदी, फखर जमान, सलमान अली आगा, वसीम जूनियर खूब लुत्फानंदोज हुए। और आईसीसी ने वुमेन्स वर्ल्ड कप का प्रोमो जारी कर दिया। वीडियो में खवातीन की खेल से मोहब्बत और यादगार लम्हात दिखाए गए हैं। मेगा इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम तमाम मैच कोलंबो में खेलेगी।